इंसुलेटेड मतलब? इंसुलेटेड मतलब कि जब मैं करंट फ्लो करूं बेटा, तो वो करंट वायर में राउंड पूरा घूमे। अगर ये इंसुलेटेड नहीं होगी और ये वायर आपस में ज्वाइंट है, तो करंट राउंड राउंड ना घूमकर करंट क्या करेगा, वो ऐसे जाएगा और फिर यहां से वो सीधा ऐसे चला जाएगा। वो राउंड सर्किट लेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। Good evening, ma'am. ठीक है, तो दिस इज व्हाट सोलेनॉइड इज। सोलेनॉइड में इंस्टेड ऑफ वन कॉइल वी आर टेकिंग नंबर ऑफ कॉइल्स। ये हमारा जब यहाँ से गया बेटा, ये मेरा बेसिकली एक टर्न हो गया। एक टर्न में जो फील्ड बनेगी, तो यहाँ पर मैं अब एक टर्न से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सो आई एम टेकिंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई थी क्लास, Good evening, ma'am. Everyone. Evening. All right. So were you people having a class with Deepak sir? I thought he was teaching you guys. No, ma'am. Okay. All right. Excuse me, ma'am. Excuse, Yes, ma'am. Can you please, ma'am? Can you please send the, ma'am? Can you please send notes of class on 6 May 2021? May, I don't remember which class was it. Ma'am, 6 June. Ma'am, 6 June. What, ma'am? What Ma'am, did we can you do? please? Do you remember? Ma'am, we have started the chapter fiber to fabric. Fiber to fabric. Okay, okay. So I think Shlok used the posted the notes, right? No, So ma'am. नहीं, okay, okay. So let's do one thing. जो भी बच्चा अब next time notes post करेगा, they will post the notes from the very beginning. यानी जब से chapter start किया है, तभी से सारे notes post हो जाएंगे, so you people can tally. All right. मैम एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा नोटबुक ही गुम गया, तो मैंने अभी न्यू नोटबुक बनाया है. Okay, okay. Right. Sarthak, are you completing your notes? Are your notes complete? Yes, ma'am. Yes, okay. So today, can you post the notes from the beginning of this chapter? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. तो सार्थक will post his notes in group. All right. Scan करके उन्हें वहीं पे post कर देना. Now today we have to talk about silk. How is silk obtained? The life cycle of the silk moth, right? I think Anika is not here, है ना? Kabir is saying that I have joined after past 2 days because I was unable. Okay. So Kabir, we have started with the chapter fiber from fabric, right? Last class में हमने किया था wool के बारे में, that how is wool obtained, and उससे पहले हमने बात की थी about the plant fibers कि हमें अलग-अलग plant से कौन-कौन से fibers मिलते हैं, okay? And today we will be doing about silk. Okay, got it? So when Sarthak will upload his notes, you can quickly jot them down in your notebook, right? Okay, ma'am. Okay. Now see, जो silk होता है, you people must have heard कि there is not just a single type of silk. There are multiple types of silk. अलग-अलग तरह के होते हैं. And why are these different? Because ये हमें different तरह की category या species of silk moth से मिलते हैं.
right? There is not just one type of silk moth, but there are several varieties of silk moth. जैसे आप dogs ले लो, dogs को देखो कितनी सारी breeds है ना, अलग अलग, husky, golden retriever, then there is Labrador, मैम and जर्मन शेपर्ड. yes, right? So you know, all these breeds have different specialities also, right? जैसे German shepherds जो होते हैं, they are extremely aggressive, whereas जो Labradors होते हैं, golden retrievers होते हैं, they are not that violent. वो बहुत मतलब काम से बहुत friendly होते हैं, right? Similarly, अलग अलग तरह के silk moth से भी जो silk मिलता है, उसकी भी जो texture, coarse और जो quality है, that is different, right? So the different types of silks, write down this point, okay? One second. All right. मैम अभी मैं यहाँ से शुरू करूंगा तो स्टार्टिंग का भी मैं लिखूंगा. Starting का as in, मैम जो अभी सार्थक भेजने वाले वो भी मैं लिखूंगा. आपकी नोटबुक गुम गई है ना, तो आपको हाँ, तो फिर लिखना ही पड़ेगा. मैम तो मैं अभी ये लिखता हूँ फिर उसके बाद स्टार्टिंग का लिखूंगा. Yes, yes. So you leave a few pages, right? थोड़े से पेजेस छोड़ दो और उसके बाद ये लिखना स्टार्ट कर दो. मैम या फिर मैं यही लिख देता हूँ और आगे मैं पहले का लिख लूंगा. हाँ, ठीक है. जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कर लो. Ma'am, I joined now. Can you please tell what we have done? Anika, we have just started. So today we will be talking about silk. Okay. So I was telling everyone that there are different varieties of silk. ठीक है, जैसे टसर सिल्क होता है, मूगा सिल्क होता है, एंड कोसा सिल्क भी होता है. तो ये जो अलग अलग तरह के सिल्क हैं, why are these different? Because we are obtaining these from different type of silk moths. Okay. So that is just what I'm writing. Ma'am, this is the first work we have done, or there's some work. No, this is the very first work that we have started writing. Okay. Ma'am, what you have written after silk? After silk moth, over here are obtained from different types of silk moths. Excuse me, ma'am. मैम की मैं एग्जांपल एक ही लाइन में लिखूं या फिर दूसरी लाइन में लिखूं? जैसे मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल अलग पॉइंट में, वैसे ही आपको भी अलग से लिखना है. ओके मैम. मैम आपने एग्जांपल का फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? टसर सिल्क. ठीक है, TASSAR. ओके मैम. Ma'am, what you have written after moga silk? मूगा सिल्क के बाद है कोसा सिल्क. ठीक है. Okay, ma'am.
एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम की मलबेरी का मीनिंग क्या होता है? मलबरी इज अ टाइप ऑफ प्लांट. ओके, मलबरी जो है वो एक तरह का प्लांट है. ओके मैम. अरे व्हाई इज माय कर्सर, व्हाट हैज हैपेंड? ओके, गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको एक बार क्लोज करके ना फिर से चलाती हूँ, बिकॉज अदरवाइज ये बार बार हैंग होता रहेगा. Ma'am, what you have written after silk? 1 सेकंड, वेयर? मैंने तो बहुत जगह सिल्क लिखा हुआ है. You Ma'am, will have to tell me. ma'am, fourth point, these. These silk moths, M. Okay, ma'am. मैम, हाँ बोलो. नथिंग मैम. ओके, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी. मैम के अपने सेकंड लास्ट वर्ड में MILBERRY लिखा है या फिर MU? आई नहीं है, दैट इज MU. ओके मैम. मैम वो अपना ऊपर डॉट लगाया था ना, मुझे लगा ये. हाँ, वो गलती से ना, क्योंकि कर्सर नहीं दिख रहा था तो वो लाइन आ गई थी वहां पे. ओके मैम. डन मैम. Done, ma'am. ओके, Ma'am, wait. मैम, हाँ जी. मैम ये जो सिल्क होता है वो जब लार्वा कैटरपिलर जब मॉथ में कन्वर्ट होते हैं उसके बीच का जो स्टेज होता है उससे निकालते हैं. तो जब उसको खोलते हैं तो फिर उस लार्वे का क्या होता है, मतलब कैटरपिलर का? हाँ, अभी जब हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगी कि व्हाट हैपेंस टू द लार्वा. ओके, ये नोट कर लिया सबने? तो अब हम Yes, लाइफ ma'am. साइकिल Yes, के बारे ma'am. में करते Ma'am, no, ma'am, wait. हैं. अच्छा अच्छा, कर लो.
मैम जो लाइफ साइकिल में जो पेन से आपने लिखा है वो डिलीट कर सकते हो आप? कहाँ पे? मैम ये जो बीच में लिखा है लाइफ साइकिल के फोटो पे। अच्छा, ये बीच में गुजर मुचड़ हुआ है, कोई बात नहीं, वो तो कुछ नहीं कह रहा ना, डोंट वरी। राइट, चलो नोट कर लिया। ओके, नाउ सी लास्ट पॉइंट रह गया। 1 सेकंड। और मेरा कर्सर बार बार पता नहीं क्यों गुम हो रहा है यहाँ पे। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज हैपेंड टू इट टुडे। अरे स्टॉप वर्किंग। See, I don't even know where my cursor is now. Great. मैम आपका कर्सर राइटिंग एरिया पे है। मेरा कर्सर राइटिंग एरिया पे तो है। अब ये देखो ना, यहाँ पे अब हाउ डू आई नो कि अब ऊपर स्क्रॉल। मैम आप वापस रीस्टार्ट कर दो फिर। पर फिर रीस्टार्ट के लिए मुझे मैं कितनी बार बंद करूंगी इसे, ये सोचो ना। आज ही कर रहा है ऐसी प्रॉब्लम, पहले तो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। मैम या फिर मैम आपका बीच में लोड क्यों हो रहा है? मैम आपका स्क्रीन में ब्लर आ रहा है। हाँ, यस वो मैम, और वाइटिश रिस्पॉन्डिंग कर रहा है ना। आई नो। मैम हमारा भी बहुत बार होता है। मैम शायद आपका रैम यूसेज ज्यादा हो रहा होगा। आई एम नॉट श्योर बिकॉज इतना तो मैं कुछ करती भी नहीं हूँ लैपटॉप के अंदर अदर दैन टेकिंग द क्लासेस। Ma'am, there would be too many files. Maybe I will have to, clear my laptop for a while then. अभी तो लैपटॉप मैम यहाँ पर हैंग हो रहेगा। हम ठीक हो गया अब। हाँ, तो ठीक हो गया। आप पता नहीं ना कब तक ऐसे रहता है ये। चलो एनीवेज, जल्दी से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता। ओके मैम मौत इतना बड़ा होता है? हाँ बिल्कुल, इतना बड़ा होता है। राइट नाउ सी, सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल मॉथ होती है दैट विल ले एग्स, ओके, एंड नॉट जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ एग्स, कम से कम 500 के आसपास एग्स ले करती है। सो ऊपर हेडिंग डालो लाइफ साइकिल। लास्ट वर्ड क्या था? मैम न्यू पेज प्लांट लेना है। प्लांट वाज द लास्ट वर्ड। हाँ, प्लांट वाज द लास्ट वर्ड, राइट। मैम हमको न्यू पेज लेना है। नहीं, उसके नीचे देखो, ये छोटी छोटी बातें ना मुझसे मत पूछा करो। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ जो आपको बाद में पढ़ने में इजी लगे, राइट। Ma'am, does moth sting? No, it does not sting. No. Okay. Moths नहीं sting करते हैं। Ma'am, around Life 100 cycle के अंदर- moths come in my balcony. ओके। सबसे पहले फीमेल सिल्क मॉथ lays about 400 to 500 eggs on the mulberry leaves. अब देखो वो लीव्स पे क्यों ले कर रही है एग्स को, बिकॉज जैसे ही इन लीव्स के अंदर से कैटरपिलर बाहर आएंगे वो फटाफट से लीव्स को खाने लगेंगे, ठीक है। सो शी इज एक्चुअली लीविंग द एग्स एट अ प्लेस जहाँ पे उनके लिए काफी सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल हो। उससे क्या होगा कि जब कैटरपिलर बाहर आए तो उन्हें सिर्फ खाना खा के बड़े होना है, उन्हें ढूंढना नहीं है इधर उधर जाके खाने को, राइट, बिकॉज वो ऑलरेडी खाने के ऊपर ही है, ओके। Then after 14 days, these eggs will hatch. Into larvae, right? Now the only job of these larvae is to eat and eat continuously so that they can grow into a very, very large caterpillar.
इतना खाते हैं कि यू नो बिकॉज ऑफ द ईटिंग दे ग्रो अबाउट 1000 टाइम्स ऑफ देयर साइज, राइट? यानी कि जितने थे उससे 1000 टाइम्स बड़े हो जाते हैं, और वो भी कितने टाइम के अंदर? विद इन 30 डेज। जैसे आपकी हाइट जो है, अब when you were born, you were a baby, your height would become you know like 10 times your height when you were a very small child or an infant. और उसमें कितने साल लगते हैं? इट टेक्स अबाउट 18 to 19 years, है ना? जब आप 19 years के होगे तब आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, इसके बाद आप लंबे नहीं होते। बट जो लार्वा है वो, एक मिनट, व्हेन आई एम स्पीकिंग यू पीपल शुडंट इंटरप्ट इन बिटवीन, ओके? वेट फॉर मी टू फिनिश. And the larva within 30 days can eat so much that it grows about 1000 times its size. All right? हाँ, आप बोलो विश्रुत. मैम की आपने सेकंड लास्ट वर्ड क्या लिखा है? Continuously. Ma'am, does the moth incubate these 500 eggs? No, it does not incubate. देखो insects के अंदर you will hardly find any incubation process. This incubation is generally in birds. Even आप reptiles या frogs में भी देखो तो उनमें कोई incubation जैसी चीज नहीं होती. मैम incubation मतलब? मतलब जब उनके ऊपर बैठ, हाँ, when the mother sits on the eggs to give them warmth so that they मैम can like hatch. hens. Yes, right? So that is called incubation. ma'am, but insects do not incubate their eggs because they don't have that much feathers. Yes, you can say that. Also, you know, the eggs that the insects lay do not need any incubation, right? उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है incubation की. Ma'am, written. Written? Okay. Now, after, you know, the caterpillar have grown, what happens is कि have you seen the snake shedding their skin? देखा है Discovery and Nat Geo पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes. तो see, जिस तरह से स्नेक्स अपनी डेड स्किन और ओल्ड स्किन को शेड कर देते हैं ना, उसी तरह से ये कैटरपिलर्स भी अपनी डेड स्किन को शेड करते हैं. एंड हाउ मेनी टाइम्स डू दे शेड इट? दे विल शेड इट अबाउट 4 times. यानी जब वो छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ और कोकून स्टेज तक पहुंचने में ही वो 4 बार अपनी स्किन को शेड करता है. राइट? ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, Yes, ma'am. यू गाइस नो, पता है उस दिन 8th क्लास को पढ़ाया था या 7th क्लास को पढ़ाया था, तो वो कहते मैम हमें तो पता ही नहीं स्किन शेडिंग क्या होती है. मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं पता? बट दे डिड नॉट नो अबाउट इट. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल नो. मैम स्किन शेडिंग के वक्त स्नेक बहुत मतलब दर्द सहना पड़ता है ना? मतलब वो कोई रफ चीज पे खुद को रगड़ता है. मैम उसको फिर बहुत ज्यादा खुजली होती है. हाँ जी. मैम वो कोई रफ जगह पे रगड़ता है. ओके, अब देखो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कोकून कैसे बन रहा है, राइट? बिकॉज अभी तो लार्वा है या कैटरपिलर की फॉर्म में. इट इज लाइक दिस. इट इज लाइक दिस. ऐसे करके कैटरपिलर है वो. तो क्या होता है कि इस कैटरपिलर के हेड के अंदर देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज अ स्पिनरेट. ठीक है? जिस तरह से आपके हेड के अंदर देयर इज अ ब्रेन, यू हैव आईज, ईयर्स, सो ऑल दीज आर ऑर्गन्स, राइट? इसी तरह से कैटरपिलर के हेड में भी एक ऑर्गन होता है व्हिच इज नोन एज स्पिनरेट. जैसे यू हैव सलाइवा इन योर माउथ, राइट? यू पीपल हैव सलाइवा, मतलब कि थूक मुंह में होती है जो. इसी तरह से इसके स्पिनरेट के अंदर से भी एक ग्लू जैसा सब्सटेंस निकलता है. ठीक है? एंड हैव यू सीन कि जब ग्लू कभी कभार होती है तो ऐसे उसके धागे धागे से बन जाते हैं ना, इट फॉर्म्स स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लू. हैव यू Yes, सीन ma'am. दिस?
राइट, मैम पर्टिकुलरली जब उसको छोड़ देते हैं एक दिन Yes, तक। है ना। हाँ, तो इसी तरह से ये कैटरपिलर के हेड में भी जो ऑर्गन है विच इज कॉल्ड स्पिनरेट, इसमें से भी दीज ग्लूई थ्रेड्स आर रिलीज्ड। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे इस स्पिनरेट से ये ग्लू सिक्रीट करता रहता है और अपने आसपास उसको कॉइल करता जाता है, ठीक है, अपने आसपास उसको लपेटता रहेगा। सो व्हाट इज ही मेकिंग अराउंड हिमसेल्फ, ही इज मेकिंग अ कोकून अराउंड हिमसेल्फ। ओके, नाउ सी, जैसे अगर अब इसी कोकून से तो हम सिल्क लेते हैं ना, राइट? हाँ नैतिक बोलो। Ma'am, how many time does a caterpillar take to make cocoon? सी इट टेक्स अबाउट 2 days, ठीक है, कम से कम 2 दिन तक वो कॉन्टिन्यूसली अपने आसपास वो करता रहता है स्पिन, राइट, अपने आसपास वो वाउंड करता रहता है, राइट। Okay, ma'am. नाउ सी, यू नो कि ये जो कोकून में थ्रेड बनाई है इसने अपने आसपास लपेटे, इसी से हम सिल्क लेंगे, और ये थ्रेड कहाँ से निकली, इसके स्पिनरेट से, राइट। सो हैव यू हर्ड ऑफ दैट स्टोरी जिसमें वो हैन जो थी वो गोल्डन एग्स देती थी, तो उस आदमी ने क्या किया, उस हैन को ही मार दिया कि उसके पेट के अंदर बहुत सारे एग्स होंगे। सुनी हुई है ना वो स्टोरी? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. क्या मैं वही प्रोसेस यहाँ नहीं कर सकती? इफ आई नो कि स्पिनरेट की जो थ्रेड है उसी से सिल्क मिलता है, तो मैं सीधा कैटरपिलर का स्पिनरेट ही ले लेती हूँ। मैं क्यों वेट कर रही हूँ कोकून बनने का, है ना? बताओ, मैम इज इट राइट? नो हाँ मैम। बोलो कबीर। मैम जो जब कैटर या लार्वे अपना कोकून बना रहा होता है तो मैम स्टार्टिंग में वो मतलब वैसे जो बैग्स होते हैं, नेट वाले बैग्स होते हैं, उसकी तरह लगता है सबसे पहले। हाँ जी, वो पहले उसकी तरह, क्योंकि थोड़ी थोड़ी थ्रेड है ना, फिर धीरे धीरे पूरा कवर होता है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द स्पिनरेट पार्ट, सी व्हाट हैपेंस इज कि ये जो स्पिनरेट के अंदर से ग्लू निकल रही है वो अभी सिल्क नहीं है, वो सिल्क बनता ही तब है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, यानी जब वो उसके सिर में से बाहर निकल के हवा के कांटेक्ट में आया तभी वो सिल्क बनता है। तो अगर मैं उसका स्पिनरेट निकाल लूं और मैं सोचूं इसके अंदर जो ग्लू है उससे सिल्क मिलेगा, दैट इज नॉट द केस, क्योंकि वो सिल्क नहीं है। ओके, until and unless it comes in contact with the मैम air, अगर it हम will उसको not form खोल ही silk. देंगे तो फिर वो हाँ, एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। नो नो, सी वो एयर के कांटेक्ट में तो आएगा, बट जब कैटरपिलर उसे सिक्रीट कर रहा है, इट इज सिक्रीटिंग इट अलोंग विद यू नो सम अदर केमिकल्स आल्सो दैट आर प्रेजेंट ओनली इन द कैटरपिलर्स बॉडी, राइट, एंड वी कैन नॉट यू नो गेट दोस केमिकल्स आर्टिफिशियली। इसीलिए हम वेट करते हैं कि कैटरपिलर कब अपने आसपास एक कोकून बना ले, राइट? तो मैम अंडरस्टूड? जब पहली बार चाइना ने इसकी इन्वेंशन की होगी तो मैम उनको भी पहले मतलब ऐसे ही लगा होगा कि हम इसका स्पिनरेट निकाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हो सकता है उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हो, है ना, हो सकता है उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हो, राइट? यस मैम। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अब देखो सबसे पहले कैटरपिलर क्या करेगा, इट हैज टू प्रोड्यूस अ कोकून अराउंड इट। तो क्या वो ऐसे ही खुले में रहेगा या फिर इट विल गो टू अ सेफ प्लेस? Go to a safe place. मैम Will go सेफ to a प्लेस। safe place because according to the caterpillar it has to sleep for next few days, so it will make sure कि वो किसी सेफ जगह पे चला जाए जहाँ पे उसे कोई देख ना पाए और ना ही वहाँ पे कोई उसे you know predate कर पाए, कोई उसका शिकार ना कर पाए। So the caterpillar will go to a safe place and start preparing for cocoon. Cocoon formation, right? It releases, मैम हाँ जी, मैम क्या 2 टाइप के कोकून्स होते हैं? आई मीन मतलब दो टाइप के लार्वा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता,
मैम क्योंकि एक तो मौत वाला होगा और एक बटरफ्लाई वाला। अभी मैं बताती हूँ, वेट वेट। देखो कोकून तो सारे सेम ही होते हैं, ओके। द ओनली डिफरेंस इज इन द मटेरियल। अब जैसे सिल्क मॉथ वाले कोकून के अंदर सिल्क है, whereas जो बटरफ्लाई वाला कोकून है दैट इज मेड ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल, ओके। सो ऑब्वियसली द मटेरियल इज डिफरेंट, बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर वाइज कोकून सेम ही होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने अपनी फाइब्रोइन क्या लिखा है? फाइब्रोइन। फाइब्रोइन, फाइब्रोइन मतलब एक तरह का फाइबर। ओके मैम। Ma'am, can you please ma'am, can you please write it somewhere else? मैम आपने कोकून फॉर के बाद क्या लिखा है? फॉर्मेशन, पूरा एक मैम वर्ड है। मेशन। हाँ जी, फॉर्मेशन। ठीक है। और जब अपने आसपास वो ये स्पिनरेट की हेल्प से फाइबर लपेट लेता है, इट मूव्स इनसाइड इट इन द फॉर्म ऑफ 8, ओके। And how long is the cocoon? It is about 1000 meters long, right? So the cocoon is made of about, मैम उसको ककून बनाने में ही 2-3 दिन लगते होंगे। हाँ उसको 2 days लगते हैं। Ma'am, what is the last word? Ma'am, what is the word after the? SPINNERET। स्पिनरेट। मैम बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे है, वो एक छोटी जगह पे समा जाता है पर होता है बहुत लंबा। मैम स्पिनरेट स्पाइडर के मतलब स्पिनरेट वाला पार्ट स्पाइडर के पास भी होता है। हाँ कुछ ऐसा ही सिमिलर सा स्ट्रक्चर होता है स्पाइडर्स के पास भी, दैट्स राइट। ओके नाउ अगर मैं इन कोकून्स को सिल्क के लिए ना यूज करूं और मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या होगा, दैट विद इन 7 to 8 days, मतलब विद इन अ वीक इसके अंदर से एक मच्योर सिल्क मॉथ निकल आएगा, राइट? मैम मतलब जैसे बटरफ्लाई के कोकून में से एक बटरफ्लाई निकल आती है, वैसे इस कोकून में से भी एक सिल्क मॉथ आ जाएगा। देखो पहले एग्स थे, फिर कैटरपिलर बना, कैटरपिलर ने कोकून बनाया, कोकून से सिल्क मॉथ आ गया। बट जब हाँ, हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस कोकून को ही ले लेते हैं, हम इसको सिल्क मॉथ बनने नहीं देते, राइट? क्योंकि हमें तो सिल्क चाहिए ना इसमें से, सो वी टेक द कोकून्स ओनली, राइट? हम कोकून स्टेज से आगे इसको नहीं जाने दे सकते, अदरवाइज हमें सिल्क नहीं मिलेगा। मैम बट मैं ये सोच रहा, मतलब मेरे को लगा था कि आपने बोला कि मतलब अगर हम कोकून से जो लार्वा अंदर है उसको निकाल कर कोकून को छोड़ देंगे तो नहीं नहीं, अभी देखना आगे हम क्या करते हैं फिर कोकून के साथ। मैम right? तो फिर ककून के अंदर जो रहता है वो मर जाता है। हाँ बोलो, व्हाट आर यू सेइंग श्लोक? मैम तो जो लार्वा जो ककून स्टेज में होता है वो मर जाता है। हाँ उसको हम किल कर देते हैं।
मैम व्हाट इज प्यूपा? इज जब लार्वा कोकून के अंदर चला जाता है हम उसे प्यूपा बोलते हैं. मैम रिटर्न. मैम आपने 100 मीटर लॉन्ग के बाद सलाइवा लिखा है. हाँ जी, हाँ 1000 मीटर लॉन्ग सलाइवा थ्रेड. मैम डन. मैम आपने बताया था कि प्यूपा वो होता है जब लार्वा ककून के अंदर जा रहा होता है, तो फिर मैम आपने मतलब ऐसे क्यों लिखा द प्यूपा इनसाइड द ककून? नो जब आई सेड कि जब लार्वा कोकून के अंदर चला जाता है, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि वो उसके अंदर जा रहा होता है तब हम उसे प्यूपा बोलते हैं. जब वो कोकून के अंदर पूरा कवर हो गया है, अब जो उसके अंदर स्टेज है हम उसे प्यूपा बोलते हैं. ओके देन मैम जो ककून का स्ट्रक्चर में जो सिल्क होता है वो उसको ही यूज करके ये अडल्ट मॉथ बनता है. हाँ बिल्कुल. मतलब ककून पूरा यूज कर लेता है वो. हाँ वो कोकून के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है उन्हें यूज करता है और साथ साथ में अंदर ही अंदर डेवलप होके मॉथ बन जाता है. मैम जब वो मतलब अगर वो मॉथ बन गया तो सारे जो ककून का मटेरियल है वो खत्म हो जाएगा. मैम हाँ जी. मैम मैम मीन्स जब Yes. मैम जब वो लार्वा होता है और मैम जब वो कोकून के अंदर जाता है तो मैम वो बड़ा होने के लिए मैम कोकून को खाता है. हाँ कोकून को खाता आज सच नहीं है, बट कोकून के अंदर की जो लेयर है उसमें से कुछ ना कुछ केमिकल्स वो यूज करता रहता है. मैम मैंने तो देखा ओके था मैम. कि वो खाता है. मैम as in, देखो खाने का मतलब मैम ये नहीं है कि वो उसे अंदर से बाइट करेगा या कुछ as such. The chemicals you know are in such a state कि वो reabsorb होते रहते हैं उसकी बॉडी के अंदर. नो मैम आई एम सेइंग दैट मैंने मैम डिस्कवरी चैनल पर देखा था कि जब लार्वा निकल रहा था ककून से, तो वो लार्वा नहीं था, वो मॉथ था, लेकिन उसके जो विंग्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो अपने ककून को खाता है और अपने विंग्स को बड़े करता है. फिर वो उड़ सकता है. देखो हो सकता है दैट यू नो दैट माइट हैव बीन अ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉथ, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि बहुत अलग अलग तरह के, एंड ऑब्वियसली वो अलग है बिकॉज यू नो देयर हैबिटेट एंड देयर हैबिट्स कुड आल्सो बी डिफरेंट, राइट? ओके आगे चले अब. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ द सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज. राइट, सबने नोट डाउन कर लिया ना? यस Yes, ma'am. Then, ma'am.
Okay, now see, let me just show you a few pictures. ये देखो, this is a silk worms caterpillar, right? Okay, तो ये देखो सिल्क वॉर्म क्या करता है कि अपने आसपास एक नेट बना लेगा so that the cocoon stays in place, वरना गिर सकता है. मैम वो मतलब टांगते नहीं है. देखो, this is spinneret. See, this is the structure जो वो ग्लू रिलीज करेगा उसके आसपास. ओके, so there are two glands that are having openings in the spinneret जिनके अंदर से फिर सिल्क प्रोड्यूस होता है या फिर that saliva thread comes out. ओके, ये सेम पिक्चर है. चलो अब हम बात कर लेते हैं, ये सब हम लिख चुके हैं. सो लेट्स जस्ट टॉक ओवर हियर. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, ऑब्टेनिंग सिल्क. हेडिंग डालो, ऑब्टेनिंग सिल्क. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी नैतिक. मैम जब वो मैम सिल्क बना मैम जब वो मैम वो एक जाला सा बनाते हैं मैम, उसके अंदर प्रोटीन होता है. हाँ बिल्कुल, प्रोटीन तो हर फाइबर के अंदर होता है. ठीक है, दैट इज व्हाई द Okay, फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज़ दे हैव प्रोटीन्स इनसाइड देम. ओके मैम. नाउ फर्स्ट स्टेप इज बॉइलिंग. हम इन कोकून्स को बॉईल करते हैं सो दैट अंदर जो प्यूपा है उसकी डेथ हो जाए. वरना अगर वो ग्रो करता रहेगा तो जैसे अभी कबीर बोल रहा था कि देयर आर चांसेस कि वो उसे खा जाएगा सो दैट इट ग्रोज इनटू अ सिल्क मॉथ. और अगर वो उसे खा ही जाएगा तो मेरे पास सिल्क के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, है ना. और यहाँ ऊपर देखो, सी ओवर हियर, about 2500 silkworms are required to make one silk साड़ी. इसीलिए ये इतनी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि कोकून्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, राइट. इनके अंदर से बहुत पतली पतली थ्रेड मिलेगी और सिल्क साड़ी बनाने के लिए हमें काफी सारे कोकून्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट. मैम मैम आपने मैम जब सिल्क की हिस्ट्री हो रही थी तो आपने मेरे को बताया, मतलब सबको ही बताया था कि सबसे पहले चाइना में बना था. वैसे वो मैंने बताया था मैम, लेकिन मतलब जो एम्परस और एम्परर्स थे मैम, मतलब वो उनको भी मतलब मनी देने पड़ते थे सिल्क की क्लोथ्स पहनने के लिए कि उनको फ्री में मिलता था. उन्हें तो फ्री में ही मिलता होगा ना, बिकॉज उनके लिए तो एक लग्जरी आइटम थी. अब जैसे इफ यू आर द एम्परर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट और उस स्टेट के अंदर बहुत सारा वीट जो है वो उगता है, तो आप उस वीट को खरीदोगे या आपको ऐसे ही मिल जाएगा? क्योंकि आप तो राजा हो ना उस सिटी के या उस स्टेट के, तो आपको ऐसे ही लोग दे देंगे बिकॉज यू ओवर देयर ओन द लैंड. वो सारी जमीन आपकी है. ओके, तो उन्हें पैसे नहीं देने पड़ते थे. But I won't be rude. जी, Ma'am, I won't be rude. I will give them money instead. मैम मुझे लगता था कि जो सिल्क का आउटर कवरिंग होता है उसको पहले काट देते हैं और ककून मतलब प्यूपा को निकाल देते हैं, फिर उसको नॉर्मली कर देते Ma'am, हाँ मेरे को नहीं, नहीं ऐसे नहीं लगता. होता, उन्हें किल कर दिया जाता है. ठीक हैं. है, मैम तो हम उसको डायरेक्ट खोल के भी किल कर सकते हैं ना? नहीं उसे खोल नहीं सकते क्योंकि अगर आप खोल दोगे तो वो थ्रेड सारी टूट जाएगी ना. सी, दिस इज अ सिंगल थ्रेड जो ऐसे ऐसे हुई हुई है और मैं चाहती हूँ कि इसी थ्रेड से मैं थ्रेड मतलब एक धागा बना लूं पूरा सिल्क का. अगर मैं इसे कट कर दूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएंगे? ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बच जाएंगे फिर तो सिल्क थ्रेड के. इन्हें मैं कैसे जोड़ के कपड़ा बना सकती हूँ, राइट. फॉर मेकिंग अ फैब्रिक आई नीड अ प्रॉपर लॉन्ग फाइबर, है ना. एंड दैट इज व्हाई इट इज बॉइल्ड एंड नॉट कट. अंडरस्टूड? यस मैम. मैम लेकिन फिर बॉईल करने के बाद उसका क्या करते हैं? अभी बताती हूँ, डोंट वरी. राइट, अब देखो बॉइलिंग के बाद क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ लूज एंड. जैसे टेप होती है, टेप में आपको कहीं ना कहीं वो एंड दिख ही जाता है ना, फिर आप उसको खींचते हो तो टेप खुलती जाती है. इसी तरह से इन कोकून्स के अंदर भी एक एंड है, राइट.
उस एंड को पकड़ के उसकी एक थ्रेड जो है वो खींच ली जाती है। नाउ सी, एक कोकून में से जो थ्रेड मिल रही है दैट इज वेरी वेरी फाइन, बहुत पतली है, राइट, इट इज वेरी थिन लाइक दिस, है ना। फॉर मेकिंग वन सिंगल थ्रेड, अगर मुझे सिल्क की एक थ्रेड बनानी है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे कोकून्स लेते हैं, ठीक है, उनकी थ्रेड्स को ऐसे इकट्ठा करते हैं लाइक दिस, एंड इन सबको इकट्ठा करते करते एक सिंगल थ्रेड बना ली जाती है इस तरह से। एंड दिस Excuse- प्रोसेस, वन सेकेंड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग। तो ये बनी सिल्क की थ्रेड जो अब कपड़ों के लिए यूज होगी। अब इस थ्रेड से फैब्रिक बनाया जाएगा, साड़ी या सूट या शॉल जो भी बनाना है वो अब इस वाली थ्रेड से बनेगा। और ये सिंगल थ्रेड कितने कोकून से बनी, अबाउट 10 cocoons are required to make one single thread of silk. Okay, Ma'am? हाँ नैतिक बोलो। Ma'am, at how many degree they are boiled? At how many degrees? See, normally water boils at 100 degrees Celsius. तो इतना ही टेम्परेचर रहता है बॉइलिंग के लिए। Okay, ma'am. Excuse हाँ me, बोलो ma'am. कबीर। One second. कबीर was Ma'am? speaking, then Vishnu. हाँ बोलो। Ma'am, when they make silk ma'am, saris, like any type of sari, so do they cut? Because it's because we call sari an unstitched cloth. Yes. See, what they do is कि पहले वो बहुत सारी threads बना लेंगे, है ना, फिर उस thread से वो fabric बनाएंगे। Now that depends कि वो fabric किस चीज के लिए बन रहा है। If it is being made for साड़ी तो वो fabric उतनी ही length का बनेगा, राइट। देन ऑल्सो देयर आर टाइम्स जब आप देखते हो कि पूरा लंबा का लंबा फैब्रिक होता है, ऐसे रोल्स बने होते हैं। कभी मम्मा पापा के साथ, पर्टिकुलरली मम्मा के साथ शॉपिंग कर रहे हो तो देखा होगा ना, मम्मी कभी सूट की शॉप में Yes, जाती है तो ma'am. वहां पे ऐसे पूरे रोल्स होते हैं कपड़ों के, जिन्हें हिंदी में हम Yes. थान बोलते हैं कि थान है कपड़े का। तो ऐसे करके सिल्क के भी होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और साड़ी के लिए फिर इन्हें कट किया ही जाता है। बट उसे कट करना इतना प्रॉब्लमैटिक तब इसलिए नहीं है बिकॉज दैट इज अ फैब्रिक नाउ, इसके अंदर बहुत सारी थ्रेड्स ऑफ इंटरवोवन है and it's a strong material, right? मैम जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि एक साड़ी बनाने के लिए 2500 ककून चाहिए रहते हैं, तो मैम अभी ये इतने जो पतले होते हैं उसको उनका एंड पॉइंट ढूंढने में इनको बहुत टाइम लगता होगा। हाँ, see, इतना टाइम as such नहीं लगता because after boiling, you know, the threads become loosened. Okay, जो threads हैं वो लूज हो जाती हैं, and also because now the machines are used majorly, उसके अंदर end जल्दी से मिल जाता है। Okay? मैम लेकिन पुराने मतलब जब चाइना ने सबसे पहले खोज की थी तो मैम वो अपने हैंड से ही मतलब निकालते थे। हाँ, शुरुआत में तो सब मैनुअली होता होगा ना। Okay. मैम मेरे को लगा कुछ स्पेशल टूल होता होगा उनके पास। हो सकता है होता हो टूल, उसके लिए हमें सिल्क की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, है ना, और अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे, तो अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। मैम मेरी हिस्ट्री की बुक में ऐसा कुछ सिल्क के बारे में नहीं लिखा। बात नहीं, यू कैन व्हेनेवर यू आर फ्री एंड यू फील लाइक आप गूगल पे सर्च कर लिया करो, है ना। ओके। And what you have written after for? कमर्शियल। ओके, कमर्शियल मतलब जो हम ये फैब्रिक या इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह के लिए।
मैम डन। Okay, keep noting with me. मैम आपने फाइन एंड के आगे क्या लिखा है? Fine and weak. WEAK. मैम डन। मैम कई जगह पे प्यूपा को खाया भी जाता है। I'm not sure. ऐसे मुझे पता नहीं है, हो सकता है खाया जाता हो। मैम यहाँ पर लिखा है प्यूपा डिलीशियस एंड। अच्छा, अभी बताते हैं, वेट। Okay, now finally I will receive lot of silk threads. ठीक है, now I have to utilize or use these silk threads to make a silk fabric. Fabric बनाने के लिए there are two methods. One is weaving and the other one is knitting. Okay, हाँ कबीर बोलो। हम एशिया में खाया जाता है। हाँ, सी बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज में खाया जाता है। जैसे आप यहाँ चले जाओ ना, अगर ये जितनी भी आइलैंड चाइना, कंट्रीज हैं, जैसे चाइना, मालदीव्स, हाँ चाइना, मालदीव्स, मलेशिया, इन कंट्रीज में काफी ज्यादा ये चीजें कंज्यूम की जाती हैं। कोरिया ऑल्सो। यस, कोरिया ऑल्सो, राइट। सी वियतनाम टू। Ma'am, I am not done. यस मम्मी टू। हाँ जी, व्हाट आर यू सेइंग विश्रुत? यू आर नॉट डन? Ma'am, I you are not asked done. very sure. ओके, वन सेकंड। ठीक है। प्यूपा महंगा मिलता है। अब ऐसे तो मुझे नहीं पता, बट हाँ हो सकता है महंगा मिलता हो। एक बार में I एक have- ककून से एक ही मिलता है। हाँ, एक कोकून से एक ही मिलता है तो महंगा ही मिलता होगा, राइट। Done, ma'am. ओके, right, now let's talk about, okay, see this is reeling. यहाँ पे ना फोटो थोड़ी सी कट हो गई है, वेट, या लुक। तो ये नीचे बॉइलिंग वाटर होता है, ठीक है, दिस इज वार्म वाटर या हॉट वाटर। इसके अंदर देखो बहुत सारे कोकून्स हैं एंड कैन यू सी सब कोकून में से थ्रेड आ रही है, राइट, और उस सारी थ्रेड को कंबाइन करके एक सिंगल थ्रेड बनाई जा रही है ना, देख पा रहे हो ना आप लोग। और यहाँ पे देखो द सेम थिंग हैज बीन डन बाय हैंड्स बाय दीज पीपल इन दिस पिक्चर। ओके, इसमें ये लोग हाथ से कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन से हो रहा है वही काम। ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes. Okay. All right. Now, which clothes are made of silk and people of which country wear silk clothes? ये तो आपको पता ही है, साड़ी, सूट, shawls, and these days dupattas are also being made out of silk. And people of which country particularly wear silk clothes? Asian countries में बहुत ज़्यादा silk को consider किया जाता है. Even Japan के अंदर you must have seen those kimonos that those people wear, right? वो भी silk के बनते हैं. Understood? Ma'am, in Japan there are two festivals where people wear only silk clothes. Yes. Right, now we come to making the fabric out of the thread. ठीक है, so I have the silk thread. मैम मैम सब फाइबर के लिए सेम ही प्रोसेस होता है? सब फाइबर्स के लिए नहीं, अभी आपने जब कॉटन पढ़ा था तो उसका डिफरेंट था ना मैम, पर इसमें तो फाइबर का स्पिनिंग लिखा है, तो कॉटन में भी स्पिनिंग ही करते हैं।
एक पॉइंट के बाद तो सेम हो ही जाता है, बट शुरुआत का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट? मैम हाँ जी। मैंने गूगल पर देखा कि जो प्यूपा होता है मैम वो चीपर होता है। ओके ओके, सो जो प्यूपा होता है डेलिकेसी की तरह जो खाया जाता है, दैट इज अ चीपर फूड, ओके, दैट्स नॉट एक्सपेंसिव। राइट नाउ फैब्रिक बनाने के दो तरीके हैं। मैम ऑब्टेनिंग सिल्क में सिर्फ 3 पॉइंट्स थे। हाँ जी, वन इज वीविंग एंड वन इज knitting. Okay, now weaving का मतलब है that I will take 2 threads and I will arrange them you know in different directions. तो एक में ऐसे है कि एक थ्रेड को इस तरह से रखूंगी और दूसरी थ्रेड को इस तरह से, right? So some threads are always like this. जैसे जब आप फैब्रिक देखते हो कोई, तो आपने देखा होगा ना, the cloth is arranged like this, right? ये ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे से ऐसे ऐसे मैम किस में से? किसी भी फैब्रिक में, कॉटन देख लो, सिल्क देख लो, एनी Yes. फैब्रिक दैट यू सी, व्हेन यू ट्राई टू स्ट्रेच इट, आपको दिखता है ना ऐसे स्क्वायर पैटर्न, Yes मैम। राइट? सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक व्हिच इज कॉल्ड वीविंग। जब वीविंग से हम कोई फैब्रिक बनाते हैं तो वो इस तरह से दिखेगा। द अदर वन इज निटिंग। निटिंग के अंदर हम सिर्फ एक ही थ्रेड यूज करते हैं और उसी मैम सिंगल हमको थ्रेड से ही कोई डायग्राम बनाना है। नहीं, अभी रुक जाओ। मैम निटिंग में ऐसा होता है कि अगर एक भी थ्रेड को काट दे तो फिर पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। Yes. So knitting के अंदर because it is made up of a single thread, एक सिंगल ही थ्रेड को मैंने knit करके पूरा का पूरा फैब्रिक बनाया हुआ है, तो अगर मैं कहीं से भी एक भी थ्रेड का एंड पुल कर दूंगी, वो पूरे के पूरे क्लॉथ में मुझे दिखेगा। तो स्पेशली जब आप वूलन क्लोथ्स देखते हो, कहीं से भी अगर आप उसको खींच लोगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा जो स्वेटर है या जो भी क्लॉथ है वो खराब हो जाएगा, राइट? मैम Ma'am, my grandmother also do knitting. चलो ये फ्लो चार्ट बनाओ जल्दी से, ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट। Ma'am, I made मैम it. यस मम्मी too. Ma'am, I have also made. So this is the process of मैम वीविंग में बस 2 ही सेट्स ऑफ yarn यूज करते हैं, फिर और भी यूज कर सकते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। I'm saying कि सिर्फ दो ही यूज करते हैं। मैम ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता जिसमें 3 या उससे ज्यादा यूज करते हैं। मैम नहीं नहीं होता, दैट डिपेंड्स दो। अगर कोई स्पेशल तरह का फैब्रिक बनाया जा रहा है ज्यादा खास डिजाइन वाला, तो हो सकता है उसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी यूज की जाए, माइट बी। मैम जो पुराने टाइम की शिप्स होती थी जिसमें मतलब मोटर ना यूज होकर मतलब वो बहुत बड़ा सा एक क्या कहेंगे उसको मतलब सेल्स मतलब वो किससे बनता था सेल्स? See, normally the cloth used for that used to be very very light. Generally, you know, ऐसा cloth use करते थे जो ज्यादा देर तक गीला ना रहे, जल्दी से सूख जाए, because see when you're sailing in the ocean, rain या thunderstorms वगैरह बहुत common चीज है। कई बार waves भी उड़ के आएंगी बोट के ऊपर, तो अगर वो cloth भी पानी के you know उसको retain करेगा या फिर if it is a you know highly water retention cloth या fabric, तो बोट हेवी हो जाएगी, राइट? इट कैन सिंक। सो सच अ क्लॉथ आई थिंक इज जनरली प्रेफर्ड जो लाइट हो, which you know is easily movable by the wind or the air and which can dry quickly.
मैम जैसे आपने बताया था बहुत ज़्यादा टाइप के सिल्क मॉथ्स होते हैं, तो मतलब जितने भी तरह के सिल्क मॉथ्स होते हैं मतलब उतने ही मतलब उतनी तरह के सिल्क होती हैं। हाँ जी। मैम डन। डन मैम। Look, I am still writing. You people don't look. आप लोगों को बस ना ये पड़ी रहती है कि हम बता दें हमने लिख लिया है. Look at the screen. I am still writing. Let me finish. Then you people can say done. मैम मैम ये दिस प्रोसेस इज डन बाय मशीन एंड लूम्स। मैम ये वीविंग का है ना? हाँ जी. ओके मैम। मैम सिल्क का जो कपड़ा होता है मैम वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। That is very soft and that is very lustrous also. मतलब बहुत ज़्यादा shiny होता है. मैम अपने निटिंग के फर्स्ट पार्ट में आपने उसके बाद क्या लिखा है बाय के बाद? Interlocking. ओके Interlocking. ठीक है? मैम, ओके मैम. मैम in third part what you have written after is? Comparatively. Okay मैम। Watermelon में? मैम डन। Done. Okay. Then, ma'am. डन। डन मैम। नो मैम. मैम जब बॉईल कर रहे होते हैं पूरे ककून को तो हम कितने टाइम के लिए बॉईल करते हैं? Yes. What's the question?
मैम जब कोकून्स को बॉईल करते हैं सिल्क के, तो मैम वो कितने टाइम के लिए बॉईल करते हैं? See, as such, it is for 15 to 20 minutes, right? Because it's very hot, steaming, boiling water, right? So in that, the pupa dies very quickly. So about 15-20 minutes, max to max, half an hour is enough. Then ma'am, Okay, so now I'll show you कि weaving के अंदर जो दो अलग अलग strands है उनके नाम क्या हैं and how does a loom look like. Okay, तो देखो, the strand which is going like this, जो इस तरह से होती है, that is called a warp. और जो ऐसे ऊपर नीचे से निकलती है ऐसे ऐसे, that is called a weft. हाँ बोलो कबीर. मैम आपने कहा था कि जो वीविंग में मतलब स्क्वायर स्क्वायर से बन जाते हैं बहुत छोटे छोटे। मैम मेरी टी शर्ट में बस स्ट्रेट लाइंस हैं। वो बिकॉज इसलिए है क्योंकि जो वेफ्ट है वो बहुत फाइन होगा, ठीक है. दैट मस्ट बी अ वेरी फाइन वेफ्ट, और या फिर द लेयर यू नो ऑफ द थ्रेड्स मस्ट बी मोर. ओके ओके, 1 सेकेंड, लेट मी शो. ये देखो, ठीक है. सो दिस इज द वॉप. ये देखो इस तरह से वॉप होता है, राइट. यहाँ पे इन्होंने ना वेफ्ट दिखाया हुआ है क्योंकि ऊपर नीचे से यहाँ से वेफ्ट जा रहा है, ठीक है. एंड वॉप इज द वन जो सिंगल सिंगल स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है. कई बार जैसे आई थिंक अभी श्लोक पूछ रहा था कि मैम उससे ज्यादा कोई तरीका होता है, तो देखो देयर इज अनदर वे जिसमें साइड में थ्रेड्स जाती हैं, दैट इज बायस. ओके, और मेरे पास मैम कैन यू प्लीज टेल मी वेफ्ट? यस यस, आई एम टेलिंग यू. देखो, these threads will be straight. ये ऐसी पड़ी, जैसे आपने अपने घर में कॉर्ड देखी होगी. देखिए, have you seen a cord at your place, मंजी? उसके अंदर आपने देखा कि कुछ जो बीच में स्ट्राइप्स होती है वो इस तरह से होती हैं, राइट. और उसके बीच बीच में से some other stripes are going like this, ऐसे ऊपर और फिर इसके नीचे से, फिर ऐसे ऊपर, फिर नेक्स्ट वाली के नीचे से. देखा है ना वही मैम चीज. लाइक बैडमिंटन रैकेट। Yes. So the warp is a straight line thread. ये बिल्कुल सीधी रखी हुई थ्रेड है. जो वेफ्ट है वो ऊपर नीचे से जाएगी. देखो यहाँ से नीचे से ऊपर से, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, इस तरह से, राइट. इफ यू पीपल वांट, छोटा सा ये डायग्राम ड्रॉ कर लो सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉप एंड व्हाट इज वेफ्ट. ठीक है, फिर मैं आपको Mama perhaps wax. क्या विश्रुत, व्हाट आर यू सेइंग? मैम जी हमें कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है? ये चेक वाला या फिर ये चेक वाला. मैम ऑरेंज वाला? हाँ हाँ, ऑरेंज वाला. ओके मैम.
Okay, so Sarthak is saying that my notes are not complete. Anika, are your notes complete? What, ma'am? I'm asking that are your notes complete for this chapter? Yes, ma'am. Okay, okay. So you do one thing, you scan the notes for this chapter from the very beginning. जब से हमने start किया था तब से scan करना and post them on the group. ठीक है, group पे post करना. Don't send them to me personally. Right? Okay, ma'am. Okay, so do it today positively. Ma'am, what you have written after R? Where Ma'am, in weft. are called. यहाँ these are thinner and more flexible. Okay, ma'am. Ma'am, ma'am, the last work was the weaving and knitting one only, right? लग जाएगी. कैसे आया लग जाएगी गले में बेचारे को. हाँ जी कबीर, tell me. Ma'am, I am Anika. Yes, Anika, बोलो. Ma'am, the last work was weaving and knitting only, right? Yes, yes, I said yes. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? Am I audible? Ma'am, your voice was very low. I couldn't hear. Okay, okay, okay. Right, right. Yes, Kabir, do you have a doubt? No, ma'am. Okay, okay. Your hand is raised. Right. So is this thing clear? आगे चले? Yes, ma'am. No, wait. Okay, okay. Wait. Okay, you guys note this down. I will be back in 2-3 minutes. Okay, just give me one. Ma'am, written. She is away from keyboard.
Okay. Yes, Kabir, do you have a doubt? यस मैम। आप बताओ। मैम जो सिल्क होता है मैम, उसमें मतलब केमिकल्स की क्या जरूरत है? मतलब केमिकल्स एज इन कौन से केमिकल्स? मैम आपने हमको बताया था ना कि मतलब मतलब जब अंदर लार्वा अंदर होता है अपने ककून के, तो वो केमिकल्स मतलब ऑब्टेन करता है। तो मैम Okay. See, Archana, देखो. See, have you heard of certain glands inside your body? आपने सुना है कि आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है ना? Right? So what is the importance of these glands? They secrete or they release certain chemicals in our body, right? The chemicals are present in very very small amount, but their significance is very high. Okay, इन chemicals को हम hormones बोलते हैं और इनकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है वो होती है। Now, have you seen dwarf people? आपने देखा है ना जो लोग ड्वार्फ होते हैं, तो उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? उनकी थायराइड ग्लैंड जो है वो खराब हो गई, जिसकी वजह से उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई। ओके, तो अगर मैं ये बोलूं कि इस ड्वार्फ को अगर मैं खूब सारा खाना खिलाऊं तो ये लंबा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। खाना आप भी खाते हो, खाना वो भी खाता है, बट यू विल ग्रो टॉलर whereas he will remain short only. Why? Because along with the diet there is an important thing missing in his body. Similarly, जो कैटरपिलर है या प्यूपा है, उसने डाइट तो ले ली, लेकिन देयर आर सर्टेन अदर केमिकल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय हिज बॉडी, बाय यू नो इट्स ग्रोथ, जिसकी वजह से उसकी डेवलपमेंट होगी, राइट? बिकॉज इट हैज टू चेंज इनटू अ मॉथ। अब उसके विंग्स भी बनेंगे, उसका बॉडी में भी चेंज आएगा, तो यू नो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज टेकिंग प्लेस. So for that, these certain chemicals are required. Got it? Is he speaking anything? He's not audible. Kabir, are you saying something? You're not audible. yes ma'am. My volume got and my mic got Okay. ठीक है? Okay. Now see, this is a loom. ये जो picture है यहाँ पे, ये एक loom है. So यहाँ loom के अंदर these threads जो इस तरह से सीधी सीधी लगी हुई हैं, these are the warps, right? ये warp है. And shuttle के अंदर जो thread है, that is a weft. अब ये shuttle ऐसे ऐसे करके घूमती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, और वो कपड़े के अंदर पैटर्न ऐसे वाला बनता जाता है। ठीक है? So this is a loom, and this material or this particular device in between is called the shuttle, जिसके अंदर हम वेफ्ट को कॉइल कर देते हैं। ठीक है? हाँ कबीर बताओ। मैम ये जो शटल होती है, इसके बॉटम पार्ट पर कोई मतलब बहुत थिन सी कुछ मतलब कुछ लगा होता है। बॉटम पार्ट पे एज इन नहीं, देखो इसके अंदर ना सुई होती है एक्चुअली, देयर इज अ नीडल इनसाइड इट, राइट? और वो नीडल ही ऐसे ऐसे करके थ्रेड्स के ऊपर से कर करके थ्रेड को निकालती जाती है और फैब्रिक बनता जाता है। और वो नीडल नीचे होती है कि मतलब कहाँ होती है? यहाँ बीच में लगी होती है, जिसकी वजह से ये जो शटल है ये धागों के बीच में अटकी रहती है। ठीक है? दिस शटल यू कैन से इज एंटेंगल्ड बिटवीन द थ्रेड्स बिकॉज ऑफ द नीडल इनसाइड इट। बहुत डिफरेंस दिख रहा है सिर्फ इस स्वॉप में और ये फुल क्लॉथ में। Ma'am, when I visited Gujarat, I saw these loom. A man was doing something which was creating some fabric kind of. Is done by hands also, but again hands के साथ जो ये process है, this is a very very tedious process, right? This requires a lot of effort and lot of time also. ठीक है? इसके बाद हम आ जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स पे। नाउ सी, सिंथेटिक फाइबर्स का टॉपिक बहुत ही ज्यादा छोटा है। The importance in synthetic fibers is that these are cheaper, right? And these are produced by using one natural fiber and one synthetically produced material. Okay. Now they have some additional properties such as waterproofing and you know long lasting you can say durability is there, right? यानी बहुत टाइम तक वो फैब्रिक खराब नहीं होगा। Then it is very strong also. So that is the importance of synthetic fibers. Synthetic fibers आप कहाँ देखते हो? You find them in raincoats, आपके स्कूल बैग्स,
मैम रेनकोट तो प्लास्टिक से बनता है। यस मैम। नहीं, कई बार टेरिलीन वगैरह से भी बनते हैं रेनकोट्स। ओके, जरूरी नहीं है प्लास्टिक से। अगर आप अच्छी क्वालिटी वाले रेनकोट्स देखो तो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ओके, ट्राउजर्स, जैसे आपने अपने फादर वगैरह का देखा होगा ना, टेरिकॉट के ट्राउजर, ब्लेजर्स, यस मैम। right? So these synthetic fibers have some advantages, but they also have some disadvantages. जल्दी से लिखो advantages. एक्सक्यूज मी मैम जो आपने एडवांटेज के एकदम साइड में रखा है रेनकोट बैग्स एंड वो सब, मैम तो फिर हमें वो लिखना है। लिख सकते हो। ओके मैम। Durability, cheaper, strength, waterproof, shiny, है मैम ना? सारे टेरिकॉट की ट्राउजर्स वगैरह काफी शाइनी सी होती हैं। हाँ बोलो कबीर। मैम सारे सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं वो मतलब वाटरप्रूफ होते हैं? नहीं, that is just an additional property. Okay, that is just something additional that I've told you. Okay, so Anika, I guess Anika, we heard you. Anika was telling us na कि when she visited Gujarat, she had seen कि लोग loom use कर रहे थे. So she's saying that it is a very difficult looking process. It seemed कि it is difficult doing it by hand. Right? तो ये सब advantages हो गए. Now disadvantages are, सबसे पहला कि the pores or the spaces between the yarns or the fabric is very little. So अगर गर्मी में कभी आप कॉटन की टी शर्ट पहनो तो आपको इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, बिकॉज दी कॉटन टी शर्ट कैन अब्सॉर्ब योर स्वेट। बट अगर आप सिंथेटिक के कपड़े पहन लोगे तो उसके अंदर यू विल फील वेरी हॉट बिकॉज इट इज नॉट एबल टू अब्सॉर्ब द स्वेट। देयर इज मैम वेरी रेनकोट में भी yes, there is very little space for the wind or the air to reach your skin. हाँ कबीर बताओ। मैम कई बार सिंथेटिक क्लोथ्स बहुत जल्दी बर्न भी हो जाता है अगर आप उनके Yes, they can catch fire very easily. Good Kabir, very nice. मैम हम वेरी हॉट लिख सकते हैं? Yes, you can write it. Ma'am, what you have written after space? Between. I have written between in short form. And third point would be can catch fire very easily. Ma'am, after I mean like my mother knows this point that it can catch fire easily, but she likes synthetic clothes and she cooks every time wearing synthetic clothes. It does not mean कि अगर synthetic clothes पहने हैं तो आग लगेगी ही लगेगी. It basically means कि if you are working in a place या फिर you are at a particular event जहाँ पे कुछ ऐसा फायर वर्क हो रहे हो या फिर there is fire around, तब रिस्क हो सकता है. जैसे दिवाली वगैरह पे it is said कि आपको सिंथेटिक कपड़े पहन के पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए because they can easily catch fire. Okay, and as far as cooking goes, so it is maybe because your mother likes wearing synthetic clothes, उन्हें वो कपड़े अच्छे लगते होंगे, है ना? Ma'am, because it's loose. Yes. Right. So with this chapter is finished. Okay. Next class से फिर हम एक new chapter start करेंगे. मैम इन एडवांटेजेस मैम अभी सॉक्रेटिव आएगा ना? हाँ जी. हाँ बोलो अनिका. I mean, advantages we can also write that the synthetic fiber do not shrink.
Yes, you can write that also, that they do not shrink. मैम डू नॉट स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? मतलब वो छोटे नहीं होते, जैसे कई बार आपने देखा ना कपड़े वॉश करने के बाद साइज में छोटे हो जाते हैं। यस मैम। और मैम साथ साथ में अगर आप बहुत टाइम तक कपड़ों को मतलब वॉशिंग मशीन में मतलब बहुत ज्यादा धोते हो तो उसमें छेद भी हो जाते हैं। यस, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है ना, बार बार फ्रिक्शन की वजह से जो वीविंग थी उसकी वो खुल गई। The yarns are now separated, and that is why there will be holes in between the you can say threads. हाँ बोलो विश्रुत, I think विश्रुत was saying something. मैम कि आपने ये BLW क्या लिखा है? between BLW नहीं है वो, मैंने BT B है, का BT। between का B स्लैश और बीन का W। BTW भी लिख सकते हैं वैसे। मैम मेरी मम्मा हमेशा लिखती है अपने ऑफिस के मेल्स में। राइट, सो सबने नोट कर लिया? शुड आई स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay. I think Vishrut is still writing. Vishrut, are you still writing? Done ma'am, done ma'am, done ma'am. Done. मैम Okay. लास्ट पॉइंट मैम। Okay, okay, कर लो, I'm waiting. And the rest of you can leave the session, okay? बाय मैम, थैंक यू मैम, नमस्ते Ma'am, मैम। Bye ma'am, thank you ma'am. Ma'am, हाँ बोलो। ma'am, Socrative will be posted today. I think not today, maybe tomorrow. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, thank you. Yes, Kabir, done? यस मैम। बाय मैम, नमस्ते मैम। Okay, bye-bye.